पैनल्स को सुनने के बाद आपको बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस मिलेगा और इसीलिए शुरुआत करेंगे। और पहले पैनल के लिए हमने ऐसा पैनल तैयार किया है जिसके अंदर बात होगी शिक्षा की, बात होगी टेक्नोलॉजी की और बात होगी क्रिएटिविटी की। तो मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी टेस्लर ग्रुप की डायरेक्टर नगीना बैंस जी को, इसके अलावा डॉक्टर मधु चित्कारा जी को जो कि प्रो चांसलर हैं चित्कारा यूनिवर्सिटी की। इसके साथ ही साथ मैं वरुण बंसल जी को भी स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी जो कि डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं वयम ग्रुप के, वयम प्रोडक्शन, जो कि आप लोगों के बीच में ये संवाद स्थापित किया जाएगा कि आखिर उद्देश्य क्या रहा है। और आप इस पैनल को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी कृष्ण, और मैं भी आपके बीच में पहुंचूंगी और हम समझेंगे कि आखिर उद्देश्य क्या रहता है। और इसके साथ ही साथ जब बात होगी टेक्नोलॉजी की, जब बात होगी करियर ग्रोथ की, बात होगी युवाओं की, हमारे बीच में नगीना जी हैं जो आज बताएंगी कि करियर काउंसलिंग का कितना बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र की प्रोडक्शन से भी जुड़ी हुई। तो कृष्ण, ओवर टू यू, चर्चा की शुरुआत करते हैं और मैं भी चाहती हूँ और समझती हूँ। बहुत शुक्रिया दीपिका। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀਪਿਕਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਧੂ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਓਮ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਓਮ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਓਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਗੀਨਾ ਬੈਂਸ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਰ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ। Performing arts should be a prominent part of our education system. इस ऑब्जेक्टिव ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਟ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹੌਬੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੀਨੋਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਗਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ चीज़ थोपी ना जा सके। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल नगीना जी से रहेगा, क्योंकि आज के समय में नगीना जी हम देख रहे हैं कि करियर के लिए युवाओं के बीच में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जितने ये एक सफलता के तौर पर, जिसे एक बहुत अच्छे ऑप्शंस के तौर पर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत जल्दी हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, युवा ख़ास तौर पर, कि क्या ऑप्शन चुनना चाहिए। इसमें टेस्लर ग्रुप, जिस तरह से मैंने पढ़ा भी आपके बारे में कि आप युवाओं का भविष्य संवारने का काम करती है,
कितना आप महत्वपूर्ण मानती हैं करियर काउंसलिंग को, और इस करियर काउंसलिंग की दिशा में टेस्लर ग्रुप किस तरह से युवाओं के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा है? सो करियर काउंसलिंग का रोल सिर्फ करियर बनाना ही तक लिमिटेड नहीं रहता. सो आज की डेट में अगर हम करियर काउंसलिंग की बात करें तो इंटरवेंशन ग्रेड 9 से शुरू होती है, और वो इसलिए शुरू होती है क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है हर बच्चे को एक्सपोज कराना इस बात का कि आप जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो उसकी करियर आउटकम क्या होएगी. आई यू लाइकिंग बायोलॉजी और यू लाइक केमिस्ट्री, या आपको मैथ्स पसंद है या साइकोलॉजी पसंद है, आपको क्यों पसंद है, उसकी करियर ऑब्जेक्टिव आगे जाके क्या कौन सा रास्ता लेके आएगा. इसलिए इंटरवेंशन 9th 10th ऑनवर्ड शुरू हो जाती है ताकि बच्चा सारे सब्जेक्ट्स के साथ अकिन हो, उसको पता चले कि क्या पढ़ाया जाता है, उसकी आउटकम क्या होती है. एंड बाय 11th दे आर इन अ वेरी गुड फ्रेम to make up their mind about what they want to pursue. So intervention 9th से शुरू हो जाती है. 11वीं तक बच्चे को पता है मैंने क्या करना है, कहाँ जाना है, एंड 12वीं तक आपको पता है एप्लीकेशन चली भी जाती हैं. सो ये 4 साल उस बच्चे को ये सिखाना समझाना कि ये वाला कोर्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाता है, उसकी आगे जाके ग्रोथ क्या है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री की नीड क्या है इस टाइम. सो वी एक्सपोज इट, making them go beyond the classroom and telling them what is actually, what awaits in the world and what the world needs. So that is what we do. तो बिल्कुल डॉक्टर मधु चितकारा जी प्रो चांसलर ने माजरत चाਹੁੰਦਾ मैं फॉर करैक्शन ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰੁਣ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿਓਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਗੀਨਾ ਬੈਂਸ ਜੀ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਧੂ ਚਿਤਕਾਰਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ब्रेन ड्रेन बहुत वड्डे पद्धर ते हो रहा है, बच्चे कैनेडा यूके मूव हो रहे हैं, उत्थे ही एजुकेशन लैवल कितना ज़्यादा स्ट्रोंग होवे ते जिथे कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं लैके भी पूरे विश्व दे विच चर्चा हो रही है. डॉक्टर साहब, I think so, first of all, thanks to Z calling for all of us. It's a good platform to talk about this. सर ने बात की, बांसल साहब ने, कि परफॉर्मिंग आर्ट्स, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स से एआई तक. परफॉर्मिंग आर्ट्स सर जैसे आप बोल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता इनको, और अब जो लेटेस्ट आ गया बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई, उसके बाद when the HR people are coming to for the placements, well said by Nagina ji कि 9th से ये they start grooming the students. So when the HR companies come, they don't only see the academic background. तो उनका जो vertical होता है, that is not only the academic. It's not only they are talking about IQ, but they are talking about EQ, SQ, and HQ also. So what SQ is? This is social quotient. And social quotient में every university, not only the Chitkara University, but all the university across the globe, now they have started working on the other verticals of their domain. So it's not only कि हम academic की बात करते हैं, but it is whatever we do from our heart, that also matters a lot. उसके लिए आपको छोटे से एग्जाम्पल बताते हैं कि हमने सर आप लोगों को अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आपके बच्चों को, आपके प्रोफेशंस को, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन, जैसे हमने अपने यूनिवर्सिटी में रंगरेज शुरू कर दिया, रंगरेज में थिएटर एक्टिविटीज़ शुरू करी. तो बच्चों को डे 1 से पता होना चाहिए along with doing AI कि what is which is connected to your emotional quotient, जो दिल से बात करते हैं, दिल से हम क्या बात करते हैं, उसके लिए क्या कुछ हुआ जाता है. तो उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को, लिटरेचर फेस्ट शुरू कर दिया. उसमें बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चों को सिर्फ एजुकेशन का या AI का ना पता हो, ये चीज़ें भी पता हो. रीज़न बीइंग कि व्हेन दे आर गोइंग ग्लोबल, सो ग्लोबल में उनके 1 मॉड्यूल इज़ ऑलवेज कि हाउ दे वर्क विद द सोसाइटी. तो उसके लिए व्हेन वी अडॉप्ट द विलेज, एवरी यूनिवर्सिटी अडॉप्ट सम विलेजेस अराउंड, और उसमें जो काम होता है उनके साथ क्या काम किया जाता है वो भी बच्चों को साथ साथ. तो इसके लिए ये सिर्फ अब ये नहीं रहा कि हमने उनको सिर्फ AI की बात करनी है. बट बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने क्या पूछा कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है या बाहर जा रहे हैं बच्चे, कनाडा जा रहे हैं. अब नहीं जा रहे, बिकॉज नाउ दे हैव सीन कि जो एजुकेशन सिस्टम, इंडिया एजुकेशन सिस्टम है, इट इज़ द बेस्ट. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ सेइंग दैट कि जो हमारा बच्चा
आज मैं ये कहती हूँ कि अगर यूएस के सिलिकॉन वैली से हमारे सारे इंडियंस यहाँ पे वापस आ जाएं तो सिलिकॉन वैली विल नॉट बी सिलिकॉन वैली, बिकॉज हमारा ही बच्चा वहाँ जाके जो डेवलप कर रहा है. अभी मैं पिछले हफ्ते ही आई वॉज इन वर्जीनिया टेक, वहाँ पे जो हमारा इंडियन स्टूडेंट्स है वो जो बच्चा AI यूज़ करता है, आई थिंक वी आर द बेस्ट एंड वी शुड ऑल पैम्पर आवर सेल्फ दैट what our students is able to do that nobody else in the world is able to do. तो हमारा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे बच्चों का, और AI is a need of the hour. बिकॉज अभी आप जब मैं आपसे इनफॉर्मल बात करती आपने बोला शायद जॉब्स की भी प्रॉब्लम आएगी. सो आई हेयर कमिट हेयर कि AI आने से what is AI? AI is artificial intelligence, which is artificial in nature, can't take the front stage. So it is all cooked by the people like us, people like all of us sitting here. हम जो दिमाग उसमें डालते हैं वो AI काम करता है. अब आप नोट करना कि अगर आप रात को कोई ऐसा चीज़ देख रहे हैं जिसमें मान लो आप पिंटरेस्ट ही देख रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आप अपनी न्यूज़ को ही देख रहे हैं, एग्जैक्टली उस टाइम पे AI की एक ऐसी टेबुलेशन होती है कि वो आपको वही चीज़ दिखाना शुरू करती है. सो व्हाट इज़ दैट? इट इज़ ऑल डन बाय अस. तो ऐसा कुछ नहीं है कि AI के आने से, बट इट इज़ नीड ऑफ द आर टू अंडरस्टैंड व्हाट AI इज़ एंड हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली इन डे टू डे लाइफ. इसका बहुत बेनिफिट है, और आई थिंक आप लोग भी देख रहे होंगे इसमें न्यूज़ में भी और इसमें भी कि कहाँ पे AI से आपको बेनिफिट हो रहा है. डॉक्टर मधु चितकारा जी बहुत शुक्रगुजार, वरुण बांसल साहब बहुत शुक्रिया, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਦੀਪਿਕਾ. बिल्कुल, तो इस पैनल को सुना आपने जहां पर हमने बात की शिक्षा पर, जहां पर हमने बात की AI टेक्नोलॉजी पर और बदलाव को लेकर भी बात की है. उम्मीद करते हैं कि इस पैनल की बात और इस पैनल के जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो आपको आपके दिलों तक छू पाने का काम कर पाए होंगे. और अब वक्त है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने स्वागत भी किया, राजनीतिक पहलुओं को सुन रहे हैं, तो राजनीति से जुड़ा हुआ पंजाब का एक राजनीति में एक बड़ा चेहरा जो कि हमारे बीच में मौजूद है, पंजाब सरकार में एक बड़ा ओहदा रखने वाले और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी वो हमारे बीच में आए. एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं. ये वो शख्सियत है जो इस वक्त पंजाब की अगर ख़जाने की बात करते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों पर है, और इन्हीं के ज़िम्मे इस वक्त पंजाब सरकार जो कि पंजाब के विकास के और हित के लिए काम कर रही है. जी दिल्ली NCR हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी से आग्रह करूंगी बुके देकर सम्मानित करें हरपाल चीमा जी को. ज़ोरदार तालियां भी हो जाएं. देखिए, आपकी जो तालियां हैं वो बयां करती है कि आप लोग कितने उत्साहित हैं इन राजनीतिक हस्तियों को सुनने के लिए. और इसी के साथ साथ देखिए, अब ये वो वक्त है जब सम्मान के साथ साथ सभी आवाज़ें भी हम आपको सुनाएंगे, और इसके साथ ही उन जो आवाज़ों को आपने सुना है, द रियल हीरोज़, उन्हीं रियल हीरोज़ को सम्मानित करने का वक्त है. और मैं स्टेज पर तीनों ही अपने जो पर्सनालिटीज़ हैं दरख्वास्त करूंगी कि हमारे जो टीम है उनकी ओर से जो फेलिसिटेशन सेरेमनी रखी गई है उसके लिए मैं द रियल हीरोज़ की शुरुआत करती हूँ, उन सभी को आमंत्रित करती हूँ. सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी क्वालिटी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश कुमार अरोड़ा जी का. स्टेज पर आएँ और उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा. हमारे दोनों ही जो मेहमान हैं चीफ गेस्ट आज के, और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के एडिटर भी मौजूद हैं. ज़ोरदार तालियां हो जाएं. और देखिए, तालियां ज़रूर बजनी चाहिए. अगर हम बात करें क्वालिटी फार्मास्यूटिकल कंपनी की, तो ये फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में बदलाव के लिए जाना जाता है. ग्लोबल फार्मा इनोवेशन फॉर हेल्थ केयर एंड डिजीज केयर के लिए जाना जाता है. इनका काम ही फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़ा हुआ है. बस ज़ोरदार तालियां. और चलिए, अब मैं दूसरे हीरो को बुलाना चाहूँगी स्टेज पर, डॉक्टर अवतार सिंह, जो कि डायरेक्टर हैं ऑर्थोपीडियाट्रिक्स के अमनदीप हॉस्पिटल इन पार्टनरशिप विद उजाला
सिकनेस। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार डॉक्टर अवतार सिंह जी के लिए। ये रियल पायनियरिंग ऑफ हीलिंग बोन्स एंड रिस्टोरिंग लाइफ्स, हमने अभी सुना भी इनका अनुभव कि किस तरह से हड्डियों की अगर हम बात करते हैं और हड्डियों से जुड़ी हुई किसी भी समस्या की अगर हम बात करें तो इसके जादूगर डॉक्टर अवतार सिंह जी हैं। डॉक्टर मधु चितकारा जी को अब स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि प्रो चांसलर हैं चितकारा यूनिवर्सिटी की। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत बदलाव करने के लिए जानी जाती हैं। तालियां जो भी यहाँ पर आ रहे हैं ये वही रियल हीरोज हैं जिनकी आवाज़ें अब तक आपने सुनी हैं, इसलिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट बचनी चाहिए। तो मधु चितकारा जी आपके बीच में थी और इसी के साथ साथ अब वक्त है मिस इंद्रजीत औलख को बुलाने का, जो कि एम प्रो के डायरेक्टर हैं। जोरदार तालियां हो जाएं इंद्रजीत औलख जी के लिए। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर दोनों के लिए ही जानी जाती हैं, असिस्ट मैनेजमेंट के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं एम प्रो के डायरेक्टर इंद्रजीत औलख जी। और आप लोगों की तालियां ही इन रियल हीरोज के लिए एक आत्मबल और भरोसे का विश्वास करती हैं और काम करती हैं। इसके साथ ही साथ ये वही आवाज़ें हैं जिन्हें आपने सुना, उन्हीं को सम्मानित किया जा रहा है। और अब मैं बुलाना चाहूँगी सुनीलजीत सिंह जी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं VCS ग्रुप के। इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। सुनीलजीत सिंह जी स्टेज पर आए, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं VCS ग्रुप के। अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये अपने रीजन में यानी कि अपने क्षेत्र में अपने आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स के लिए और बदलाव के लिए जाने जाते हैं। और इससे पहले देखिए मैं जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगी कि देखिए ये लम्हा है जब हरपाल चीमा जी की ओर से अमन अरोड़ा जी को सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सम्मान का ही समय है और ये अद्भुत तस्वीर देखने को मिली जब हरपाल चीमा जी की ओर से अमन अरोड़ा जी का सम्मान किया गया है। वो शख्सियत जो हमारे बीच में, जिनकी आवाज़ हमने सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे बीच में आने के लिए और अपना कीमती समय जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को देने के लिए। तो अब हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं सुनीलजीत सिंह जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं VCS ग्रुप के। और इसके बाद अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी महेंद्र खुराना जी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुंदर ज्वेलर्स के। महेंद्र खुराना जी, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। महेंद्र खुराना जी जो कि अपनी प्रीमियम ज्वेलरी अपने क्षेत्र के लिए परोसने के लिए जाने जाते हैं, एक ट्रस्टेड ब्रांड है। और इसके बाद अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी रुचि पंत और हिमांशु पंत को। रुचि पंत जो कि CEO हैं और हिमांशु पंत जी जो कि MD हैं एपिक्यू रियल वेंचर्स के। इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। ये मोस्ट क्रेडिबल ब्रांड ऑफ द ईयर है रियल एस्टेट के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, कंसल्टेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो हमारे बीच में रुचि पंत जी और हिमांशु पंत जी मौजूद हैं। इसके बाद स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर जगजीत सिंह जी को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आशा किरण IVF प्राइवेट लिमिटेड के। ये IVF के क्षेत्र में एक बड़ी चेन और बड़े बदलाव के लिए जाने जाते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर जगजीत सिंह जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और हमारे बीच में जिस तरह से सम्मान का कार्यक्रम लगातार जारी है, सभी मेहमानों से दरख्वास्त यही रहेगी, क्योंकि अभी हमारे बीच में हरपाल चीमा जी भी मौजूद हैं। मैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के एडिटर विनोद लांबा जी से एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगी कि आप स्टेज पर आएँ और द रियल हीरोज जहां हम बात कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ हमने सुनी है, उनको अब सम्मानित किया जाएगा। हमारे खास मेहमान हरपाल चीमा जी और हमारे एडिटर विनोद लांबा जी के हाथों से। तो मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर गुरलीन कौर को, जो कि फाउंडर हैं द डाइट एसेंशिया से। जोरदार तालियों के साथ गुरलीन जी का स्वागत करिए।
और ये मंच जिसका उद्देश्य ही यही था कि वो आवाज़ें जो आप तक अब तक नहीं पहुंची हैं, उन आवाज़ों को आप तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए आज द रियल हीरोज़ का ये मंच तैयार रहा, जहां पर हमने आपको वो तमाम आवाज़ें सुनाई है और उन्हीं को अब सम्मानित करने का ये वक्त है। जोरदार तालियां हो जाएं। इसके साथ ही अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी वैद्य HS बाबा जी को, जो कि फाउंडर हैं आयुर्वेदिक बाबा क्लिनिक के। इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए वैद्य HS बाबा जी का। अगर हम बात करें इनके बारे में तो इनकी एक्सेलेंसी है ट्रीटमेंट इन द फील्ड ऑफ हार्ट एंड आयुर्वेदा। आयुर्वेद के क्षेत्र से ये आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हुए लोगों के हार्ट का, उस दिल का ख्याल रखते हैं। इसके बाद मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर अभिषेक बाबा जी का, जो कि ओनर हैं बाबा मोटर्स के। जोरदार तालियों के साथ अभिषेक जी का स्वागत करिए। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ई व्हीकल इनोवेशन में इन्होंने अपने लिए एक नया आयाम स्थापित करते हुए एक्सेलेंसी अपने नाम की है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए अभिषेक बाबा जी का। ये वो रियल हीरोज हैं जो कि हर दिन समाज में कुछ ना कुछ बदलाव का काम करते हैं। अभिषेक बाबा जी बाबा मोटर के ओनर हैं और ई इनोवेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में उनकी ओर से नित प्रतिदिन काम किया जा रहा है। इसके बाद मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी भरत चंद्रा जी को, जो कि डायरेक्टर हैं ऑर्थोपीडियाटिक्स के B-ART बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए भरत चंद्रा जी का, डायरेक्टर ऑर्थोपीडियाटिक्स। ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो B-ART बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, इमर्जिंग डेवलपर्स ऑफ द रीजन। इसके अलावा भारत चंद्रा जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करिए। नगीना बैस जी को अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि डायरेक्टर हैं टेस्लर ग्रुप की। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम का परचम लहराया है। नगीना बैस जी हमारे बीच में मौजूद हैं, टेस्लर ग्रुप को चलाती हैं और इनकी ओर से भी करियर काउंसलिंग के जरिए दिन प्रतिदिन बदलाव किए जा रहे हैं। इसके बाद मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी विक्रमजीत सिंह और सुनील जीत सिंह को। डायरेक्टर हैं श्री वामन मोशन पिक्चर्स के। विक्रमजीत सिंह और सुनील जीत सिंह जी दोनों ही स्टेज पर, जिन्हें आमंत्रित करेंगे, आइकॉनिक प्रोडक्शन हाउस ऑफ द रीजन इन्हें माना जाता है, हमारे बीच में मौजूद हैं और वक्त है इन्हें भी सम्मानित करने का। इसके साथ अगले रियल हीरो वरुण बंसल, जो कि डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं वायम प्रोडक्शन के। इनको जाना जाता है इनके अल्टीमेट टैलेंट शो, इनके क्षेत्र में जिस तरह से अपने इस काम के जरिए बदलाव कर रहे हैं। वरुण बंसल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं वायम प्रोडक्शन के। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। तो द रियल हीरोज से आज हम आपका तारुफ करा रहे हैं। पहले हमने आपके सामने इनके विचार भी आपको सुनवाए हैं और इसके बाद अब वक्त है ऐसी आवाज़ों को सम्मानित करने का। और इसके बाद आखिर में मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी स्पाइन मीडिया एनालिस्ट के डायरेक्टर AK वशिष्ठ जी को। तालियों के साथ स्वागत करिए। फास्टेस्ट ग्रोइंग एडवर्टाइजिंग कंपनी है एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में AK वशिष्ठ जी, और इनकी कंपनी नित नए आयाम और नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। इसीलिए AK वशिष्ठ जी, जो कि डायरेक्टर हैं स्पाइन मीडिया एनालिस्ट के, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। तो ये कुछ हमारे बीच में ऐसी आवाज़ें, ऐसी शख्सियत थी जिनको हमने सुना, जिनके विचारों को हमने सुना कि किस तरह से ये बदलाव के लिए काम कर रहे हैं और क्या इनके विचार रहे हैं जिनसे आप अपने लिए कुछ नया यहाँ से लेकर जाएं। और जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का ये मंच इसी उद्देश्य से आज तैयार किया गया था। ये तो बात हुई उन रियल हीरोज की, लेकिन अब जब हमारे बीच में वो राजनीतिक हस्ती मौजूद है जिनके विचार को अभी हमने सुना, हरपाल चीमा जी हमारे बीच में आए, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को, तो उनको सम्मानित करने का वक्त है। हमारे एडिटर विनोद लांबा जी मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार चीमा जी के लिए भी हो जाए और
पूरे जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम की तरफ से आपका तहे दिलों से आभार कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया।